प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior परमेश्वर Jesus को Christ. धन्यवाद और महिमा गौरव आदर देता हूँ। And I thank the Lord, I give Him glory, praise and honor. हमारे इस 25वें चर्च एनिवर्सरी के दूसरे दिन में मैं आप सबका स्वागत करता And I हूँ। welcome you all for the second day of our 25th church anniversary और मैं celebration. विश्वास करता हूँ कि कल की मीटिंग और खास करके परमेश्वर के सामर्थ्य वचन और आराधना के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और आराधना के दौरान आपको छुआ है। And I believe that the Lord and His Spirit has touched you during the worship and during the word. The Lord has enriched you by His word and blessed you abundantly. और आज भी मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज की आने वाली आराधना सारे जुओं को तोड़ने जा रही है और खास करके आज का आने वाला वचन प्रॉफिटिकल वचन है जो भविष्यवक्ता के मुंह से निकलने वाला है, आप सबके जीवन को बदलने वाला है। And this is my faith tonight, that tonight's worship will break your bondages and tonight's prophetical word will bring a breakthrough in your life. आज एक नई आशीष आपके जीवन में आ रही है। A new blessing is entering your life इसलिए right प्रभु now. के लोगों अपने सारे कामकाज को हटा दीजिए, आइए थोड़े समय मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचन को बड़ी गंभीरता से सुनें और खूब आनंद उठाएं। So people of God, let us keep aside all the other works and let us concentrate on the word of God. Let us worship the Lord together as a family and enjoy His presence. आज की आराधना भी परमेश्वर को महिमा दे। And tonight's worship will glorify God. जहाँ परमेश्वर है वहाँ आराधना है, जहाँ आराधना वहाँ परमेश्वर है। Because wherever the presence of the Lord is, His worship is, and wherever He is worshipped, the आइए- presence of the Lord is आइए there. प्रार्थना के साथ इस दूसरी मीटिंग को हम आरंभ करें। And so now let us start this meeting with a word of prayer. और आज भी परमेश्वर अद्भुत बातें करने जा रहा And है। God is about to do mighty things among you tonight. आज भी परमेश्वर आप लोगों से बात करने जा रहा है। And tonight, God is about to speak with you एक all. नई आशीष आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन में आ रही A है। new blessing is entering your life and your family's क्या आप life. तैयार हैं क्या? Are you ready to receive it? आइए प्रार्थना करते Let us हैं। pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths of my heart. प्रभु, इस दूसरे दिन भी परमेश्वर आपकी महिमा का बादल परमेश्वर हमें घेरे रहे परमेश्वर। I pray, Lord, let this second day be engulfed in your cloud of glory. प्रभु, YouTube और Facebook से जितने लोग देख रहे हैं, जहाँ पे भी हैं प्रभु, इस देश में और विदेश में जहाँ पे भी ये टेलीकास्ट जा रहा है प्रभु, परमेश्वर एक अद्भुत काम होने पाए And Lord, I परमेश्वर। pray right now that all those people who are watching us via media or via YouTube or Facebook, let them be blessed whether they are in India or outside India. ख्वायर पर आपका विशेष हाथ बना रहे Lord, परमेश्वर। let your hand be upon a choir. प्रभु, सारा बजाना गाना और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। Let every instrument playing and singing be for your glory. हर एक शब्दों में अभिषेक रहे Let there परमेश्वर। be anointing in every हर एक word. गीत में अभिषेक रहे Let there परमेश्वर। be anointing in every song. जब परमेश्वर क्वायर गा रहे हैं, जब लोग उनके साथ अपने घरों में अपने परिवारों में गा रहे हैं, एक छुटकारे और एक महिमा को और एक स्पर्श को अपने जीवन में महसूस करने पाए। Lord, I pray right now as the people are joining the choir in worshiping you, let them experience your glory, let them experience your heavenly touch and fill them with your power, Lord. तेरा दास प्रार्थना करता Your है servant is praying इस right now. मीटिंग के बीच में काम करने वाली सारी अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से उसके कार्यों को मैं बांधता हूं। तेरी आत्मा को, तेरे सामर्थ को मैं आजाद करता हूं Every परमेश्वर। powers of darkness working against this meeting, we bind you in the name of Jesus, and Lord, we release your power and Holy Spirit, your grace over your आज की people. पूरी मीटिंग अलौकिक हो पिता परमेश्वर। Lord, let tonight's meeting be a supernatural सारी blessing. महिमा गौरव आदर मैं आपको I देता give हूं you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. आइए हम आराधना में जाएं, क्वायर हमारे बीच में आ रहे हैं। Let us worship the Lord as the choir leads us. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का आदर और सम्मान हो, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, जिसने हमें 25 साल आंखों की पुतली की नाई संभाला और आज इस 25वें वर्षगांठ में, इस दूसरे सभा में हम प्रभु यीशु के चरणों में उसकी उपस्थिति में आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए भजनकार कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। तो ज़ायन की तरफ से, हमारे पास्टर साहब, सिस्टर रूथ की तरफ से आप सबको इस 25वें वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु यीशु आपके संग है और संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना आज हम इस आराधना की शुरुआत करें। फिर एक बार प्रभु ने हमें ये मौका, ये अवसर दिया है कि हम जिंदा खुदावन, जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। राजाधिराज यीशु मसीह का स्वागत कीजिए परमेश्वर के लोगों, जो आपके संग आपके साथ है। यीशु मसीह का स्वागत, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, यस यस आमेन। ओ पवित्र आत्मा, ओ यीशुआ, रिलामा सेखिरी लबा, ओरी लबरा लमा शेरी लंदोरो लमा सेखिरी लबा। जहाँ कहीं भी आप हो, हमारे साथ एक आत्मा में जुड़ जाइए। हम एक परिवार होके जिंदा खुदावंद की उपस्थिति में आनंद कर रहे हैं। ओ हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की हुजूरी हमें चाहिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाइए। पवित्र आत्मा को छूने दीजिए, आपको छूने दीजिए, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हो। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद। हमारे ज़ायन परिवार के लिए धन्यवाद। तूने हमें जीवित रखा, धन्यवाद। हर एक सुख दुख में तू हमारे संग रहा, धन्यवाद। हमारे आंसुओं को आनंद में बदला, धन्यवाद। तूने हमें एकता और प्रेम में जुड़ाए और बनाए रखा, धन्यवाद। तेरी महिमा हो यीशु। पाकरू की हुजूरी हमारे बीच में है। क्यों ना ताली बजा के हम पाकरू का आदर करें। ताली बजाए परमेश्वर के लोगों, आप जहां कहीं हो, आनंद के साथ हालेलुया। आइए हम एक हो जाए, आइए हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। इस आराधना की शुरुआत करने से पहले हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 19:16 में लिखा है, मत्ती 16:19 में लिखा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। जैसे हम वचन पढ़ेंगे आपको आमेन कहना है। हालेलुया, क्योंकि वचन में सामर्थ है। हालेलुया। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 15:57 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, आमेन। हाथों को उठा के आमेन। ज़ायन को परमेश्वर ने जय दी है। ज़ायन विजयी कलीसिया है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कुलुसी की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन में, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर, क्या आप हमारे साथ कहेंगे क्रूस पर? क्रूस पर। आप हमारे संग हो। हालेलुया। कहेंगे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और क्रूस के द्वारा, आमीन, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की।
आइए आनंद के साथ इस गीत को गाएं। आमेन। Choir, are you ready? Choir, are you ready? Amen. Yes. Come on, dance with us. Come on, rejoice in the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We love you, Jesus. Amen. यीशु ने शैतान को
What a great joy in the presence of the Lord. Hallelujah. That's our Jesus Christ. Oh, thank you, Holy Spirit. Can you say, thank you, Jesus? Lift up your hands and say, thank you, Jesus. Say louder, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. आदि और अंत वो है, अल्फा ओमेगा वो है, राजाओं का राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु वो है। वो जल्द हमें लेने आ रहा है। ज़ायन के लोगों और जो हमें जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो, ये 25 साल प्रभु ने अद्भुत सिरे से चलाया है। इसीलिए आज होठों का फल लेके प्रभु के चरणों में आए हैं। क्या ही धन्य है वो लोग जो परमेश्वर उन्हें अपनी ओर खींच के उसके भवन में, उसकी हुजूरी के समीप ले आता है, उसके चरणों में ले आता है। We worship you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. There is none like you. No one like you, Lord. Yeshua. Hallelujah. Oh, राजाओं का राजा। स्वर्ग उसका सिंहासन, ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? धन्यवाद, स्तुति, महिमा जो आज आप सब हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। हालेलुया। कोई नहीं है, कोई नहीं है यीशु जैसा। आदर के योग्य वो है। He alone are worthy. He alone are worthy. Let's magnify His name. Oh, what a great God we serve. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Yes, amen.
छुड़ाने वाला यीशु। Let's say his holy name, holy name, Yeshua. Yes, choir, yes, amen. Oh, holy name, Jesus. Yeshua. Take his name, powerful name, wonderful name, जिससे शैतान थरथराता है। Yes, yes. Oh, Rilama say, yes, yes. The name of Jesus Christ. The name of Jesus. Come on, Irilama Sekerebe. Urikalla Hasiri Nama Sokorobo. What a great presence is holy. Yes, Jesus is holy. स्वर्ग में उसकी आराधना हो रही है। पवित्र, पवित्र, पवित्र। Jesus is holy. Yes, परमेश्वर के लोगों, हम पवित्र खुदावंद की आराधना करते हैं। Yes, yes. Oh Jesus, what a great presence. Oh, we love you, Jesus. Love you, Jesus. Oh, Rila Masiki, Rila Baba Baba.
हाथों को उठा के यस Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jesus is the worthy. Worthy is the Lamb. जितने हमारे साथ जुड़े हैं एक आत्मा में होके कहे हम सबको तूने आंखों की पुतली की नाई संभाला। हम जायन तेरे ऋणी है प्रभु। हम जिंदा और पवित्र खुदावंद यीशु की आराधना कर रहे हैं। Thank you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you, Lord. सारी महिमा तुझे मिले, सारा आदर तुझे मिले। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अगला साल दिया है कि हम तेरी सेवा समर्पण के साथ करें प्रभु। फिर एक बार हम जायन मिल के जितने परिवार हमारे साथ जुड़े, हम हमारे जीव प्राण शरीर को तेरी सेवा के लिए समर्पण करते हैं। आज तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर, जो दास तेरे द्वारा इस दूसरे सभा के लिए, इस 25वें वर्षगांठ के लिए चुना गया, तेरे अभिषिक्त दास को तेरे हाथों में देते हैं। हम सब से बातें कर प्रभु, हम सब से बातें कर। सारी महिमा आदर स्तुति तुझे मिले पिता, यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर को एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर आराधना के लिए। And once again, I thank the Lord for this wonderful worship. ये सारी आराधना हम परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। Let us offer the sacrifice of praise at the feet of the मैं Lord. अभी भी परमेश्वर के महिमा के बादल और उसके स्पर्श को महसूस कर रहा हूँ। And I can still feel the presence of the Lord and His cloud of glory around us. और मैं विश्वास करता हूँ आप सब जन ने अपने अपने घरों से परमेश्वर को धन्यवाद दिया And है। I believe that all of you together with your family have praised the Lord and worshipped Him. ये सारी आराधना हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं। Let us offer up this worship to the Lord. आइए दोस्तों, इस 25वें साल चर्च एनिवर्सरी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त मेरे साथ काम करने वाले मेरे सारे एल्डर जो हैं, 2 शब्द इस चर्च एनिवर्सरी के लिए सारे लोगों के उत्तेजन के लिए 2 शब्द वो बोलना चाहते हैं। And I thank the Lord for this glorious moment, and I would also like to thank the Lord for the elders of a church who are going to wish you all the wishes of this celebration. परमेश्वर को धन्यवाद, उनके साथ ये काम करने का परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। And I thank the Lord for this privilege that the Lord has blessed me with such a good team. इस वक्त एल्डर लोग आ रहे हैं। And now our elders are here to wish you. प्रेज द लॉर्ड चर्च. प्रभू येशूच्या गोड, प्रेमळ आणि पवित्र सामर्थ्यशाली नावामध्ये तुम्हा सर्वांना प्रीतीचा सलाम. आज मी तुमच्याकडे विशेष शुभेच्छा घेऊन येत आहे, ते म्हणजे झायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर यांच्या 25व्या रौप्य महोत्सवासाठी तुम्हाला सर्वांना या रौप्य महोत्सवी खूप खूप शुभेच्छा. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. जरी लॉकडाऊनमुळे आपण चर्चमध्ये हे सेलिब्रेशन मोठ्या प्रमाणावर करू शकलो नसलं तरी देवाला धन्यवाद. देवाने आपल्याला ऑनलाईनची सुंदर सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि ह्या 3 दिवसामध्ये देवाचे 3 अभिषिक्त दास वचनाची सेवा करणार आहेत. तर का नाही आपण सर्वांनी ह्या
संपूर्ण तिने मीटिंगमध्ये सहकुटुंब सहपरिवार सहभागी होऊन ह्या देवाच्या वचनाचा आस्वाद घ्यावा आणि माझा देव नक्कीच तुमचा आनंद जो आहे तो द्विगुणित करेल. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. त्याच पद्धतीने मी पास्टरांनासुद्धा खूप खूप शुभेच्छा देते. त्यांनी केलेले कष्ट, त्यांनी आम्हाला दिलेलं शिक्षण, या सर्वांसाठी मी देवाला धन्यवाद देते. आणि पास्टर तुम्हालासुद्धा ह्या वर्धापन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. देवाला धन्यवाद देते कारण की देवाने ह्या छोट्याशा रोपट्याला एक मोठ्या झाडामध्ये आणि शाखांमध्ये रूपांतरित केलेलं आहे. आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये माझा देव पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ह्या मंडळीची अजून आत्मिक उन्नती आणि बढती करणार आहे. मी खरोखर पुन्हा एक वार पूर्ण हृदयाच्या खोलीपासून संपूर्ण चर्चला या वर्धापन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि खरोखर मी खूप लोकांना मुकत आहे कारण आम्ही तुम्हाला प्रत्यक्ष पाहू शकत नाही. वी रिअली मिस यू, वी लव्ह यू. धन्यवाद देते देवाला, त्याचे आभार मानते आणि त्याच्या कृपेसाठी आणि अनुग्रहासाठी कोटी कोटी धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू चर्च. हालेलुया. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. आज जायंट पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर 25वा वाढदिवस आम्ही साजरा करत आहोत. आज मी माझ्या कुटुंबाच्या द्वारे आणि मंडळीच्या वतीने मी आपणा सर्वांना हा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहे. देवाचं वचन सांगतं, मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावतो, मला साह्य कुठून येणार. आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर, त्याचपासून आपणास साह्य येते. आणि देवाला मी धन्यवाद देतो की या मंडळी आज 25व्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला देवाने आत्तापर्यंत साह्य केलेलं आहे. म्हणून ही मंडळी आज इथपर्यंत पदार्पण करत आहे. खरोखर या मंडळीची सुरुवात एक छोट्याशा रोपट्यापासून सुरुवात झालेली आहे. आज हे रोपटं एक मोठ्या वृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं आहे आणि त्याचे अनेक शाखा निर्माण झालेल्या आहे. ही फक्त कृपा देवाची आहे. एका छोट्याशा कुटुंबामध्ये पास्टर राजू माणिकम यांनी सुरुवात केली आणि आज त्याची संख्या 250च्या आसपास गेलेली आहे. आणि आमची मंडळी ही आज एका खडकावर उभी आहे. मंडळी फक्त खडकावर उभी आहेच, परंतु देवाचं वचन या ठिकाणी एक सांगतं की मी तुम्हाला आशीर्वादित देईन व तुम्हाला बहुगुणित करीनच करीन. देवाने या मंडळीला बहुगुणित केलं, संख्येने तर केलंच, परंतु आत्मिकदृष्ट्या बहुगुणित केलं. म्हणून मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. कारण ही मंडळी एक मंडळी तर आहेच, परंतु एक कौटुंबिक मंडळी आहे. या मंडळीमध्ये एक ऐक्य आहे, एक प्रेम आहे आणि खरोखर देव या मंडळीला आत्तापर्यंत चालवत आला. म्हणून मी देवाला धन्यवाद देतो. देवाने 25 वर्षापूर्वी या मंडळीसाठी ज्या योजना होत्या त्या योजना अनिष्टाच्या नाही तर भावी सुस्थितीच्या आशा देणाऱ्या होत्या. म्हणून ही मंडळी आज एक मोठ्या संकल्पांमध्ये चाललेली आहे. कारण या मंडळीची वाढ ही अनेक शाखांमध्ये होत आहे. आणि या मंडळीसाठी पास्टर राजू माणिकम आणि यानंतर त्यांना अनेक लोकांनी जी साथ दिली, जे एल्डर होऊन गेले किंवा आम्हीसुद्धा या ठिकाणी त्यांच्या संगती या मंडळीसाठी जे कार्य करत आहोत ते कधीही व्यर्थ नाही आहे. कारण देवाचं वचन सांगतं 1 Corinthians 15:58 की प्रभूमध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ होणार नाही. आणि आत्तापर्यंत ज्या लोकांनी या मंडळीसाठी श्रम केले ते सर्व काही व्यर्थ गेलेले नाही. कारण देवाने या मंडळीतील सर्व लोकांना आशीर्वाद आणि आशीर्वाद आणि आशीर्वाद देत आलेला आहे. म्हणून या मंडळीमध्ये प्रत्येक क्षणाला देव प्रत्येकाला आशीर्वाद देतो. आणि म्हणून देवाचं वचन सांगतं की यहोवा किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा. आणि या मंडळीतील प्रत्येक लोकांनी त्या देवाचा अनुभव घेतला आणि ते आशीर्वादित झाले. आणि खरोखर आज ही मंडळी 25व्या वाढदिवसात पदार्पण करत आहे. आज या मंडळीमध्ये आम्ही एक आनंदाने हा वाढदिवस साजरा करत आहे. यामध्ये पास्टर राजू माणिकम यांनी जे कष्ट घेतले, यांनी जी मंडळी वाढवली, याबद्दल आम्ही सुद्धा त्यांचे धन्यवाद देते आहे. आणि शेवटचं मी सांगतो की मी आणि माझे घराणे तर परमेश्वराची सेवा करणार. धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. आदरणीय राजू पास्टर आणि सिस्टर रूथ, एल्डर्स, थोर लहान व्यक्ती आणि तुम्ही जे सर्व मला ऐकणारे, तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून
ख्रिस्तामध्ये तुम्हाला प्रेमपूर्वक अभिवादन. प्रेज द लॉर्ड. प्रथम मी देवाला धन्यवाद देतो की त्यांनी मला ही संधी उपलब्ध करून दिली व पास्टरांचेही आभार मानतो की त्यांनी ही योजना आखली. ह्या संधीचा मी उपयोग घेत प्रथम मी देवाला धन्यवाद देतो. तसेच राजू पास्टर, चर्च कमिटी सांगवी, खडकी चर्च कमिटी, पास्टर बुडल यांचेही आभार मानतो की त्यांनी मला या मंडळीमध्ये एल्डर म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली व खजिनदार म्हणून जबाबदारी देऊन आपला विश्वास माझ्यावरती दर्शविला. त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. ह्या 25व्या वर्धापना दिनी मी आठवतो की आम्ही ह्या चर्चमध्ये 2008 साली मी आणि माझा परिवार जॉईन झालो आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत आम्ही खूप आशीर्वादित झालो आहोत. अनेक वेळेस परमेश्वराने आमची भेट घेतली आहे. सर्व परिस्थितीमध्ये त्याने आम्हास सांभाळलेलं आहे. ह्या मंडळीमध्ये येऊन आमची आत्मिक आणि भौतिक दोन्ही प्रकारे उन्नती झालेली आहे. त्याने परमेश्वराने आपले सेवक पाठवून वेळोवेळी आमची भेट घेतलेली आहे आणि आम्हा परिवाराला आशीर्वादित केलं आहे. जसं आम्ही आशीर्वादित आहोत तसे मला खात्री आहे की तुम्ही सर्वजणही आशीर्वादित आहात. या 25व्या वर्धापना दिनी आपण करत असताना आपण आठवूया की कसं परमेश्वराने ह्या मंडळीला एका छोट्याशा रूममधनं ह्या भावनापर्यंत त्याने आणलेलं आहे आणि कसं त्याने आमची उन्नती केली आहे. पास्टरांच्याद्वारे, पवित्र आत्म्याच्याद्वारे, त्याने प्रार्थनेच्याद्वारे ह्या मंडळीची त्यांनी घडवणूक केलेली आहे आणि मागच्या वर्षाच्या भविष्यवाणीप्रमाणे आता तो आम्हास इथूनही पुढे घेऊन जाणार आहे. त्या परमेश्वराला मी कोटी धन्यवाद देतो. ह्या 25व्या वर्धापना दिनी मी तुम्हाला अभिवादन करतो. माझ्याकडून, माझ्या परिवाराकडून तुम्हाला खूप शुभेच्छा. जरी आम्ही एकत्रित येऊन ह्या वर्धापनाचे सेलिब्रेशन करू शकत नाही तरी पण मला खात्री आहे की तुमच्या सर्वांच्या मनात या वर्धापनाचे जो आनंद आहे तो खूप मोठा आहे. परमेश्वर या सर्व परिस्थितीमध्ये, कोविड या परिस्थितीमध्ये देखील त्याने आम्हाला सांभाळलं आहे. त्याने आजपर्यंत तो आमचा रक्षक झाला आहे. त्याने आजपर्यंत आमचा तो यहोवा झाला आहे. तो आमचा यहोवा इरे, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी झाला आहे. तो आमचा यहोवा शामा, यहोवा रुवा, यहोवा शालोम झाला आहे. आणि तसेच आजही तो आमच्यासाठी आहे. तो इमानुएल सदा आमच्याबरोबर आहे. तो एबनेजर आमच्याबरोबर आहे आणि तो आजही आम्हा सांभाळत आहे. त्याबद्दल मी त्याच्या नावाला धन्यवाद देतो. तसेच परमेश्वर ह्या वेळेस मी तुम्हाला प्रोत्साहन करू इच्छितो की आपण सर्वजण ह्या मंडळीला फिलेडेल्फिया मंडळीप्रमाणे एक दोषविरहित मंडळी म्हणून घडवूया. एक सुरकतीविरहित आणि दोषविरहित असं बनवून त्या येणाऱ्या राजाला सामोरे जाऊया आणि त्या जाण्यासाठी आपण सर्वजण झटूया, मनाने प्रयत्न करूया. परमेश्वरचा आत्मा हे सर्व करण्यासाठी आम्हाला सर्वांना त्याचं सहाय्य करो आणि परमेश्वराची कृपा तुमच्याबरोबर सर्वदा असो. त्याची आशीर्वाद आकाश कपाटे उघडून तुमच्यावरती येऊ देत आणि अब्राहमाचे सर्व आशीर्वाद तुमच्याबरोबर आता आणि सर्वदा असो. आमीन. धन्यवाद. परमेश्वर को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे इन सारे सहकर्मियों के लिए. Once again, I would like to thank the Lord for all my colleagues. परमेश्वर इन सभी को आशीष में करे. And may the good Lord bless them all. इनके
शब्द जो इन्होंने कलीसिया के लिए, पासबान के लिए कहे, प्रभु इन्हें बहुतायत से इनको, इनको परिवार को आशीष में करें। Their words of encouragement and their words of appreciation for the pastor and for the church will truly bless us. आइए ये समय हम परमेश्वर के वचन में चलें। So now it is time to go into the Word of और God. मुझे बड़ा आनंद है आज के वक्ता को मैं आपके सामने पेश करूं। And it's a great joy for me to introduce to you our guest speaker tonight. परमेश्वर के लोगों बड़ी तैयारी के साथ बैठिए, आज भी प्रॉफिटिकल वर्ड आपके पास आ रहे हैं। People of God, sit with a great expectation and great preparation because the prophetical word of God is about to come. आप इस वक्ता को बहुतायत से जानते हैं And you know this man of God very well. और आपकी सेवा का नाम है तेजस्वी मिनिस्ट्री। And the ministry of this man of God is Tejasvi Ministries. आपका नाम है नरेश जुतानी। And the man of God's name is Reverend Naresh Jutani. आप वसई बॉम्बे से में सेवा कर रहे And हैं। he is from Vasai, Mumbai. आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें और पूरे समय हम ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुनें। So let us welcome this mighty man of God with a round of applause and let us listen to the word of God very इस दूसरे carefully. दिन भी परमेश्वर अपनी आत्मा और खास करके सामर्थ्य वचनों के द्वारा आपको छूने जा रहे And हैं। on this second day too, the Spirit of the Lord is about to touch you in a mighty way and the word of God is about to come in your life. पास्टर नरेश जुतानी। So now let us welcome Pastor Naresh Jutani. जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। एंड आई वांट टू थैंक गॉड इस अवसर के लिए, पास्टर राजू एंड फैमिली के लिए, ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर के लिए और आप सबको पूर्ण कलीसिया को, एल्डरशिप टीम, वर्शिप टीम सबको, अलॉन्ग विद द पास्टर्स ग्रेट फैमिली, आपको 25th एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी की मुबारकबादी देना चाहते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और दो आशीष के साथ, दो प्रॉमिस जो परमेश्वर आपके साथ जो देना चाहता है उससे हम शुरुआत करना चाहते हैं। पहला प्रॉमिस इज फ्रॉम ज़करिया चैप्टर 8 वर्स 12, जिधर खुदा का कलाम लिखता है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगा, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। सबसे पहले बात, परमेश्वर इन समयों में 25th एनिवर्सरी में एक ब्लेसिंग लाना चाहते हैं और वो है दाखलता फला करेगी, यानी कि फल सदैव बना रहेगा, फल मिलता रहेगा और फलों की उपज होती रहेगी। और दूसरा लिखता है, आकाश से ओस गिरेगी और मैं इस प्रजा के बची हुओं को इन सब का अधिकारी करूंगा, यानी कि इस वर्ष में, इस 25th ईयर में प्रभु आपको एक अद्भुत ब्लेसिंग के साथ लीडरशिप की बढ़ोतरी देगा, आकाश से ओस गिरेगा, यानी कि अय्यूब में इस बात का अद्भुत रीति से कलाम लिखा गया है, जो पास्टर साहब आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रॉमिस है, मेरी जड़ जल की ओर फैली, यानी कि आपको परमेश्वर उन स्थानों पर पहुंचाएगा जहां आपका प्रयोजन रखा हुआ है। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी, यानी कि दिन में आप काम करते रहेंगे और रात को परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया! इतनी बड़ी आशीष, इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर आपके साथ देना चाहता है, आपके साथ करना चाहता है और आपको प्रभु उस अधिकार में बने रहना चाहता है। सो वी प्रे कि परमेश्वर आपकी इस सेलिब्रेशन को अद्भुत रीति से रखे और सबको वापस मुबारकबाद तेजस्वी फैमिली से, मेरे परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से। राइट, तो आज जो वचन परमेश्वर ने आज शाम आपके कलीसिया के लिए, इस अवसर के लिए रखा है, वो ये है, यीशु के चरणों के पास बैठना, एट द फीट ऑफ जीसस। लोग बहुत सारे स्थान को ढूंढते हैं, ऊंचा स्थान, नीचा स्थान, मध्यम स्थान, धनवान का स्थान, पहचान का स्थान, लोकप्रियता का स्थान, नए वस्त्रों का स्थान, नई कमाई के स्थान, लेकिन एक स्थान जो हमको परमेश्वर देना चाहता है और वो स्थान हमसे कभी छीना न जाएगा और वो स्थान की बरकत सदैव बनी रहेगी, वो है एट
द फीट ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पैर के पास। तो हम सबसे पहले कलाम को पढ़ना चाहते हैं। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10, लूका 10 और 38 से 42 हम पढ़ेंगे। लूका 10 38 से 42, ल्यूक चैप्टर 10 38 to 42। अब वे जा रहे थे, तब वो एक गांव में गया। मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मेरी वुड सिट एट द फीट ऑफ जीसस एंड हियर हिज वर्ड्स। मरियम नामक एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय मच सर्विंग। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। इट्स नेसेसरी, एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। मेरा काम का स्थान छीना जा सकता है, मेरे नाम का स्थान छीना जा सकता है, मैं स्थान में शायद जिधर बसा हूँ शायद वो छीना जा सकता है, लेकिन एक स्थान जो कभी न छीना जाएगा वो है यीशु मसीह के पैर के पास बैठना, यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना। यहाँ अद्भुत रीति से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को 2 बार बुलाया, मार्था, ओ मार्था, for you are distracted by much servings। मार्था, ओ मार्था, तू अति सेवकाई करके तू घबरा गई है। कितने लोगों को प्रभु ने 2 बार नाम लेकर बुलाया, कितनी बातों को, क्योंकि उसका कुछ महत्व है। अब्राहम, ओ अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तू अपने बेटे से ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। देख, मैंने झाड़ी में एक मेढ़ा को अपने सींगों के बल के द्वारा अटका कर रखा है, उसे बलिदान दे। याकूब, ओ याकूब, तू डर मत, मिस्र देश को जा, वहीं से मैं तेरे लिए एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। मोसेस, ओ मोसेस, मूसा, ओ मूसा, मूसा को लगा अब मेरी रिटायरमेंट जत्रो की भेड़ बकरियों को पालने में ही जाएगी, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रभु ने उसको 2 बार बुलाया। हाँ, लॉर्ड लॉर्ड, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और वो कहेंगे हमने भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्मा निकाली। प्रभु कहता है अवे विथ यू, चले जाओ, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। सिमोन, ओ सिमोन, ध्यान से सुन, शैतान ने तुमको चाह लिया है, उन्होंने तुमको हमसे मांग लिया है। सिमोन, ओ सिमोन, क्योंकि तू मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है। यरूशलेम, ओ यरूशलेम, और प्रभु यीशु मसीह ने विलाप किया कि जिस तरह मुर्गी अपने पंख तले बच्चों को ले ले, क्या मैं तुझे नहीं ले सकता। एलोई एलोई, माय गॉड, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सॉल, ओ सॉल, तू क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है, क्यों तू मुझे सता रहा है। सैमुअल, ओ सैमुअल, और सैमुअल ने कहा मैं यहाँ हूँ। इनफैक्ट सैमुअल को टोटली 4 बार बुलाया, एक बार एक टाइम, और तीसरी टाइम 2 बार। हम देखते कि प्रभु ने 2 बार इन लोगों के नाम बुलाकर इसलिए कहा कि इनका ध्यान पूरी रीति से अपनी ओर ले ले, ताकि उनको उन काम से, उस डिस्ट्रैक्शन से, उस कहते हैं कि अटकावपन से निकाल कर खुदा बाप अपनी और अपना ध्यान खींचने के लिए 2 बार नाम लेकर पुकारता है। तो वी प्रे कि इस एनिवर्सरी में परमेश्वर आप सभियों को अपना नाम लेकर पुकारे, 1 बार नहीं 2 बार। और मैं हमेशा कहता हूँ नाम क्यों दिया गया, नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनकर आती है, मैं नाम बनाम लेकर उनको बुलाता हूँ। हमको और आपको नाम इसलिए दिया गया कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सके। हालेलुया। अब यहाँ हम देखते हैं कि मार्था जो थी वो बाहरी काम में बहुत व्यस्त थी, मरियम थी वो भीतरी काम में व्यस्त थी। मार्था वॉज वेरी वेरी एक्सटेंसिवली बिजी विथ ऑल द एक्सटीरियर वर्क।
बाहरी काम, लेकिन मरियम बहुत ही व्यस्त थी, भीतरी मन की बातों को लेकर वो बहुत ही व्यस्त थी। अब इसी को लेकर हम और एक अध्याय पढ़ेंगे मार्था और मरियम को लेके, वो है यूहन्ना 12, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8, 1 से 8। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेथानिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटा मसीह का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसको पोंछ लिया। इस इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी जिसमें से जो कुछ डालता था वो निकाल लेता था। जो कुछ डाला जाता था यहूदा निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। ना मरियम ने देखा कि हमने पढ़ा लिखा सुसमाचार ने कि यीशु मसीह के पांव के पास बैठना उसने उत्तम समझा था। और हम देखते हैं कि वो सुनती थी प्रभु क्या कह रहे, प्रभु क्या सुना रहे, प्रभु कौन सी परमेश्वर के राज्य की बातों को वो समझा रहे थे। यीशु मसीह के पांव के पास बैठने के विभिन्न अर्थ हैं और उससे क्या मिलता है आज हम मरियम के जीवन से सीखेंगे। किसी को आज रात प्रभु 2 बार नाम से बुला रहा है और सभी को एक इच्छा रखता है परमेश्वर कि मैं और आप, हम सभी जन उसके चरणों के पास बैठने वाले बने। सबसे पहले चरणों के पास बैठने के लिए टू सिट एट द फीट ऑफ जीसस नम्रता की जरूरत है। वी रिक्वायर ह्यूमिलिटी, और वो नम्रता हम मरियम के जीवन में देखते हैं। शी वॉज हम्बल इनफ टू सिट एट द फीट ऑफ जीसस। यू नो, सपोज कलीसिया से पूरी चेयर हटाई जाए, हम कह संडे नीचे बैठे, कुछ लोग जरूर संकोच करेंगे। हाँ, किसी को कमर का दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, लेकिन किसी के मन में दर्द रहता है, मैं नीचे क्यों बैठूं। लेकिन मरियम ने अद्भुत रीति से कहा, शी इन होल ह्यूमिलिटी, अपनी पूर्ण नम्रता के साथ मरियम ने कहा, मैं उसके पैरों के पास नीचे बैठने के लिए तैयार हूं। उसका पैरों के पास बैठना उसका श्रद्धा और उसकी आदर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर की श्रद्धा और उसका आदर वो दर्शाना चाहती थी। और तीसरी बात वो दर्शाना चाहती थी कि प्रभु आप जो कह रहे उसको गंभीरता पूर्वक मैं अपनाना चाहती हूँ। विथ ऑल सीरियसनेस आई वांट टू एक्नॉलेज इट फॉर माई स्पिरिचुअल नॉलेज। पूर्ण रीति से प्रभु मेरी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए कितने जन आते हैं, कितनी जगह हम जाते, लोग आकर हमसे पूछते नरेश भाई प्लीज प्रार्थना कीजिए मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए। मैं कहता हूँ इस झूठ में मत बने रहिए। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। प्रियो, अगर आपको भूख लगी है, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आपको ही खाना है। आत्मिक उन्नति के लिए मरियम को मालूम था मुझे एक स्थान चुनना पड़ेगा और वो स्थान है यीशु मसीह के चरणों के पास। वो एक चेले के समान बैठ गई। She sat as a disciple, कि मैं एक चेले के समान बैठ जाती हूँ ताकि उसकी इच्छा और उसके वचनों को सुनो, पालन करो, ग्रहण करो, उस पर बने भी रहूं ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पांव के पास बैठने के लिए वो दीनता चाहिए, पांव के पास बैठने के लिए वो एक श्रद्धा और आदर चाहिए, एक गंभीरता चाहिए, एक शिष्य बनने के अंदर मेरे अंदर में एक इच्छा शक्ति और उस कलाम की ओर प्रीति चाहिए। और हम देखते हैं कि इससे पहले के अध्याय में, दैट इज इन जॉन 11 यूहन्ना 11 में, मार्था जब आती कब्रिस्तान पर यीशु मसीह से मुलाकात होती है और वो कहती है अगर प्रभु आप यहाँ होते मेरा भाई न मरता। प्रभु ने कहा सच कहा मार्था, तेरा भाई जिएगा। मार्था ने कहा हाँ पुनरातन मैं जानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरातन और जीवन मैं हूँ। मार्था ने कहा मैं जानती हूँ जब आप आएंगे आप मेरा भाई सदैव के लिए जिएगा। प्रभु ने कहा
आज ही तेरा भाई जिएगा। आपको हम कहना चाहते हैं, कुछ लोग कल की बात करते, कुछ लोग परसों की बात करते, यीशु मसीह आज की बात कर रहा है कि आज मार्था योर ब्रदर शैल लिव, आज मार्था तेरा भाई जिएगा। और मार्था ने जाकर मरियम से कहा, मरियम घर पे बैठी थी और रो रही थी यहूदियों के साथ, और जैसे उसको पता चला कि रबाई प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान पर है, वो दौड़ती हुई कब्रिस्तान पर आई। आई लाइक दिस। और जैसे वो दौड़ती हुई आई कब्रिस्तान से, बाइबल लिखती उसने अपने आप को यीशु मसीह के पांव पर के पास गिर पड़ी। शी in fact threw herself at the feet of Jesus। वो अपने आप को यीशु मसीह के पांव के पास जाकर गिर पड़ी। ध्यान से सुनना, उसने यहूदियों का स्थान छोड़ दिया, उसने अपने घर का स्थान छोड़ दिया, उसने दुख भरी परिस्थिति का स्थान छोड़ दिया, और उस स्थान को छोड़कर उसने सही स्थान पकड़ लिया। वो था आकर अपने आप को यीशु मसीह के पांव के पास आकर गिरा देना। प्रियो, आज आप दुखी है, आज आप निराश है, आज आप नुकसान में हैं, आज आप हार में हैं, आज आपको लगता है कि अब कोई आशा नहीं बची है। एक स्थान है जो उत्तम है, एक स्थान है जो कभी छिना न जाएगा, एक स्थान है जहाँ गंभीरता है, एक स्थान है जिधर मेरी दीनता है, एक स्थान है जिस तरफ मेरा ज्ञान बढ़ता है, एक स्थान है जिधर मेरी श्रद्धा और आदर बढ़ता है, और वो स्थान है एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरणों के पास। और हम देखते हैं कि यहाँ वो एक अपना अद्भुत श्रद्धा, अपनी अद्भुत आराधना परमेश्वर को चढ़ा रही। बाइबल लिखती है, जटामसी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों को उसके पांव से पोंछे। बहुत सारे लोग थे वहाँ। यहूदी कल्चर में एक स्त्री अपने बाल पब्लिकली खोल नहीं सकती, लेकिन मरियम ने कहा, मेरी श्रद्धा, मेरा आदर, मेरा प्रेम, मेरी गंभीरता, मेरी नम्रता, मेरी सीखने की ये बातें इन समाज के लोगों से कहीं बड़ी है। मैंने वो स्थान चुन लिया जो मुझसे कभी छीना ना जाएगा, दैट इज एट द फीट ऑफ जीसस। और उसने उस बहुमूल्य इत्र को उसके पांवों के पास डाल दिया और अपने बालों से पहुँच लिया। यानी कि इसके द्वारा वो साबित करना चाहती है कि अरे आत्मिकता से मेरा चरित्र प्रभु पूर्ण रीति से ग्रहण योग्य हो। ध्यान से सुनना, उसके पाँवों के पास वो निवेदन कर रही है, उसके पाँवों के पास वो कह रहे कि प्रभु पूर्ण रीति से, आत्मिक रूप से प्रभु मेरा चरित्र पूरी रीति से तेरे निगाहों में, तेरे आँखों में ग्रहण योग्य हो। पौलुस भी गमीलियल के पाँव के पास बैठकर शिक्षा पाई थी। उसने ये बात कही थी प्रेरितों के कार्य में, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमीलियल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज सब लगाए हो। पौलुस ने एक धुन पाई थी गमीलियल के पाँव के पास बैठकर सीखने के लिए। और पौलुस ने कौन सी धुन पाई थी गमीलियल के पाँव के पास बैठकर सीखने के लिए? पौलुस ने अपने बाप दादा की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया जाना और सिखाना और उसकी रक्षा करना, ये बात पौलुस ने गमीलियल के पाँव के पास बैठकर सीखी थी। और जब चेलों ने प्रेरितों के कार्य में पहली शताब्दी की कलीसिया में पूरे शहरों में हल्ला मचा दिया था, तो लोग गए गमीलियल के पास और पूछने लगे कि हम क्या करें। तो गमीलियल के बारे में कहा गया कि वो एक फरीसी था, व्यवस्था स्थापक था, सब लोगों में माननीय था, और जो कुछ करना उसने लोगों से कहा, तुम जो कुछ करना चाहते हो सोच समझ कर करो। क्यों? इससे पहले थियोदास आया था। थियोदास एक आदमी था और वो कहता था मैं कुछ तो हूँ, वो अपने आप से कहता था मैं कुछ हूँ, और 400 लोग उसके साथ जुड़े गए। और इतिहास बताता है कि थियोदास मारा गया और लोग जो उनको मानते थे वह सब तितर बितर होकर मिट गए। उसके बाद एक यहूदा नाम का आदमी आया जो गलील से था, और जितने लोग उसको मानते थे वो भी सब तितर बितर हो गए, क्योंकि यहूदा खुद नष्ट हो गया। इसलिए गमीलियल कहता है मैं तुमसे कहता हूँ इन लोगों से दूर रहो, कुछ काम न रखो इनसे, क्योंकि यदि ये धर्म यो मनुष्य की ओर से है
तब तो मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर की ओर से तो उन्हें कभी कभी भी न मिटा सकोगे, क्योंकि ऐसा न हो तो परमेश्वर से लड़ने वाले बनेंगे। गमलीएल के पाँव के पास एक बात की शिक्षा थी, और यह बात की शिक्षा ये थी कि परमेश्वर के विरुद्ध तुम लड़ नहीं सकोगे। इतना जानने के बावजूद पौलुस ने कलीसिया के विरुद्ध काम किया, और आपको मालूम है उसका अंजाम क्या था कि परमेश्वर ने दमिश्क के मार्ग पर 2 बार उसको नाम लेकर बुलाया और उसके घोड़े से उसको नीचे फेंक दिया, अर्थात ही बॉट हिम टू हिज फीट। पौलुस को, सॉल को जब कहता है कि उसको घोड़े से नीचे गिराया, एंड ही वाज एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु के पांव के पास वो था, और उसने कहा कौन है तू प्रभु? प्रभु ने कहा सॉल ए सॉल, तू मुझे क्यों सता रहा है? दाऊद भी प्रभु के चरणों के पास बैठता था। पहले इतिहास में इसका अद्भुत उल्लेख लिया। दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठता था। ही वुड सिट एट द फीट ऑफ गॉड, और वो कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ? यू नो, आज ये पहला सवाल है, जब मैं और आप यीशु मसीह के चरणों के पास बैठता है, मैं और आज अपने आप से सवाल करना आवश्यक है, मैं क्या हूँ? बहुत लोग डिंग मारने वाले रहते हैं। हाँ, 2 तिमुथी 3 की इतिहास में लिखा गया, बहुत जन है, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसके पाँव के पास हमें समझ रहेगी मैं क्या हूँ, उसके चरणों के पास हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई है, उसके विषय दाऊद तुझ पर और क्या कह सकता है? तू अपने दास को जानता है। ए प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, तू अपने दास को जानता है। क्या आज रात हम सुन सकते हैं? क्या आज हमारे आराधना में हम जान सकते हैं? क्या आज वचनों के द्वारा मैं ये समझ सकता हूं कि मैं कहता हूं मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु कहता है ये मेरा दास है? उसके चरणों के पास बैठेंगे वो नम्रता के साथ, वो दीनता के साथ, वो सीखने के लिए, उस गंभीरता के लिए, आत्मिक चरित्र को पूर्ण रीति से स्पष्ट रूप से बताने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, और मैं कौन से ऊंचे पद पर प्रभु ने मुझे रखा है और तू मेरी चिंता करता है। ये सारी बातों को जानने के लिए हमको और को यीशु मसीह के चरणों के पास आना बहुत ही आवश्यक है। परंतु एक बात आवश्यक है, ये आवश्यकता प्रभु ने खुद कही है, परंतु एक बात आवश्यक है, और वो उत्तम भाग जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना ना जाएगा। पैसा ये स्थान दे नहीं सकती, आपकी लोकप्रियता ये स्थान दे नहीं सकती, आपका दान वरदान ये स्थान दे नहीं सकती, आपका चुनाव ये स्थान आपको दे सकती है। टुडे यू हैव टू मेक अ चॉइस। हमको और आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं उसके चरणों के पास आने के लिए। नाउ पौलुस लिखता है वो एक धुन थी उसके अंदर में, दाऊद के अंदर में एक धुन थी, मेरे और आपके अंदर भी एक धुन होनी चाहिए, और वो धुन ये है कि आज मैं एक चुनाव कर लूं। ये धुन ये है कि ये नहीं कि बड़ी मिनिस्ट्री कर लूं, ये धुन नहीं कि बड़ा घर बांध लूं, ये धुन नहीं कार और बाइक खरीद लूं, लेकिन एक धुन आज पैदा करो, और ये धुन बहुत साधारण सी है, उसके चरणों के पास बैठने के लिए। यू नो, जब मैं और आप चरणों के पास बैठते ना, हम मरियम के जीवन से 10 चीजों को सीखते हैं। We learn 10 things from the life of Mary who sat at the feet of Jesus. सबसे पहली बात हम ये जानते हैं मरियम के बारे में कि she had a teachable spirit. उसके अंदर में एक सीखने की योग्यता पाई गई थी। वो सीखने की योग्यता के अनुसार यीशु मसीह के चरणों के पास बैठती थी। दोनों बहनों थी, दोनों बहनों का काम, दोनों का योगदान अलग था। मरियम बाहरी काम में व्यस्त रहती थी, मरियम भीतरी कामों में व्यस्त रहती थी। भले मरियम बाहरी कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसे भी प्रकाशन मिला, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। और मरियम को भी ये प्रकाशन मिला, जो भाग तूने चुना है वह तुझसे कभी छीना न जाएगा। हम देखते कि मरियम थोड़ी दुखी प्रकार की बहन थी। मार्ता लाजर के लिए रोती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं बताता, लेकिन मरियम रोती है ये जरूर बताया। और वो रोकर हम देखते अपने आप को यीशु मसीह के पांव के पास अपने आप को डाल दिया। उसने घर का स्थान छोड़ दिया, यहूदियों जो उनके साथ थे उनका स्थान छोड़ दिया,
उसने अपने रोने का स्थान छोड़ दिया, उसने कब्रिस्तान के स्थान की परवाह नहीं की, लेकिन उसने अपने आप को यीशु मसीह के पांव के पास डाल दिया। आज मेरे अंदर में, आपके अंदर में ये मरियम के समान एक धुन होनी चाहिए, चाहे लोग हो, चाहे दुख हो, कौन सा स्थान हो, कौन सी परिस्थिति हो, मेरी मन की कंडीशन कैसी हो, लेकिन मैं एक स्थान चुन लूं, वो है उसके पांव के पास आने के लिए। और जब वो आई तो क्या देखते हैं, यहूदी भी उनके साथ आ गए देखने के लिए कि मरियम क्यों जा रही है, और वो उनके साथ आते हैं रोने के लिए, उसके साथ आंसू बहाने के लिए आते हैं। और ध्यान से सुनना कि जब वो पांव के पास बैठती थी, वो अवश्य, जब यहूदी उनके साथ थे, उनके बारे में उससे अवश्य गवाही दी कि प्रभु क्या कर सकता है ना। उसके पांव के पास बैठेंगे, एक अद्भुत हमारे और आपके अंदर में सीखने की आत्मा पैदा होगी, अ टीचेबल स्पिरिट। सेकंड, हम एक अद्भुत विटनेस, एक अद्भुत गवाह बनेंगे। क्यों? मरियम जब आई तो यहूदी उनके साथ आए, और जब लाजर जिलाया गया तो यहूदियों ने भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह के किया ना। यहूदियों ने विश्वास क्यों किया? क्योंकि मरियम की गवाही के द्वारा, मरियम के कहने के द्वारा, शी बिकेम अ गुड विटनेस। और हम देखते हैं कि उसने वो उत्तम बहुमूल्य सुगंध द्रव्य जटामसी का इत्र यीशु मसीह के पांव के पास डाल दिया। उसके पांव के पास सीखने की आत्मा, उसके पांव के पास अद्भुत गवाह बनने की आशीष, उसके पांव के पास मैं उत्तम देने वाला बन जाता हूँ। उसने बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह को भेंट के समान उसको चढ़ाया। क्या मेरे अंदर में आज लोभ है, लालच है, कंजूसी है, जमाखोरी है, या मेरे अंदर में रिहाई है, मेरे आप अंदर में उदारता है, मेरे अंदर में देने की आशीष है? अगर मेरा देना मेरे कमाई के अनुसार नहीं है, तो मेरी कमाई मेरे देने के अनुसार जरूर हो जाएगी। और मेरा देना यह दर्शाता है कि मैं परमेश्वर से कैसा प्रेम करता हूँ। और ध्यान से सुनना, क्यों उससे सबसे बहुमूल्य दिया? क्योंकि उसने प्रभु से बहुमूल्य पाया ना। ध्यान से सुनना, मरियम ने बहुमूल्य दिया क्योंकि मरियम ने बहुमूल्य पाया था। सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटना, यह हम पूर्ण रीति से देखते हैं। और मरियम जब उसके पांव के पास बैठकर सीखती थी तो यीशु मसीह उसके लिए नबी के समान थे। ही वाज लाइक अ प्रॉफिट टू हर। हम यीशु मसीह के पांव के पास वो बैठती थी, यीशु मसीह उसके लिए नबी के समान थे। और जब प्रभु उसके साथ सारे दुख में, सारी बातों में सहमति रखते थे, सहानुभूति रखते थे, सिंपैथी रखते थे, यीशु मसीह याजक के समान थे। और जब अब उससे उसका इत्र से उसके पांव पर उसका अभिषेक किया, इत्र से उसके पांव को साफ किया, अपने बालों से पोंछा, उसको राजा का स्थान दिया। यानी कि मरियम जब पांव के पास बैठती थी, वो कहना चाहती थी, प्रभु यू आर द प्रॉफिट, यू आर द प्रीस्ट, यू आर द किंग। तू ही याजक है, तू ही नबी है, और तू ही राजा है। और उसने जो भेंट चढ़ाई उसकी खुशबू आज तक है। हालेलुया। उसने जो भेंट चढ़ाई उसकी खुशबू आज तक है। बाइबल लिखती कि उसकी सुगंध पूरे घर के अंदर में फैल जाती है। लेकिन वहां एक विनाश का पुत्र है, वहां एक विनाश का पुत्र है यहूदा। यहूदा ने 2 ही बार बाइबल में बात की, और दोनों बार पैसों को लेकर ये बात की। यहां उसने कहा कि इसको 300 दिनारी में बेचा जाता था और गरीबों में बांटा जाता था। और हम पढ़ते के आते कि जब यीशु मसीह का बलिदान किया गया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, उसे 30 सिक्के लौटा दिया और कहा, मैंने एक आदमी को जो निष्पाप था उसकी हत्या में मैंने भाग लिया। और हम देखते कि उससे पैसे फेंक दिए और जाकर के हम यहाँ देखते कि उसकी निंदा की गई, उसकी निंदा की गई। लेकिन यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार में लिखते, तुम्हारी नजरों में निंदा होगी, मेरे लिए भलाई है। ध्यान से सुनना, मरियम ने यीशु मसीह के पांव के पास क्या सीख लिया, किस तरह प्रभु की ओर मैं अपनी भलाई को दिखा सकूं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। उसके पांव के पास आने से सीखने की आत्मा, उसके पांव के पास आने से उत्तम गवाह, उसके पांव के पास आने से उत्तम देने वाला, उसके पांव के पास आने से मैं प्रभु को मेरी भलाई को करता हूँ, मेरी भलाई को मैं दर्शाना चाहती हूँ। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, उसके पांव के पास बैठना
एक यादगार स्मारक बना गया, एक यादगार स्मारक बनाया गया। उसकी खुशबू आज तक है। वो जो मरियम ने किया वो आज तक उसकी खुशबू पाई जाती है। अक्सर लोग, प्रभु ना करे कोई मर जाए तो हम गुलाब के फूल का बड़ा एक बंडल लेकर, एक बुके लेकर उसकी कब्र पर डाल देते हैं, लेकिन वो सूंघ नहीं सकता क्योंकि वो मर गया है। लेकिन मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, जीते जी ही प्रभु मैं तुझे एक इत्र दे देना चाहता हूँ। तू जीते जी ही ये बहुमूल्य इत्र की खुशबू तू ले। उसका बलिदान सर्वोच्च था। और ध्यान से सुनना, जो ये मरियम ने किया, एक सदा के लिए यादगार काम किया। क्यों? यीशु मसीह ने इसकी गवाही दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सारे जगत में जहीं कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाए, वहाँ इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाए। आज भी हम इस बात को स्मरण करते हैं। क्यों ये यादगार बनी? क्यों ये खुशबू आज तक जारी है? उसका कारण एक ही है कि मरियम ने वो स्थान चुना जो उससे छीना नहीं जाएगा, और वो स्थान यह था यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना। इन द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 33, व्यवस्था विवरण 33:3 में यह बात लिखी है। वो लिखता है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है ना। वो शब्द प्रेम तब से है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। आमीन। सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं और एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। प्रियो, आपको लाभ चाहिए? इस लॉकडाउन में नुकसान हुआ होगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, लेकिन प्रभु सब चीज में लाभ कर सकता है। लाभ कैसे होगा? लाभ ये नहीं कि बाइबल उठाकर घूमना शुरू करें। लाभ ये नहीं कि हम कुछ और एक्स्ट्रा कमा ले। लाभ ये है जब मैं और आप उसके पांव के पास बैठकर एक एक तेरे वचन का लाभ उठाए। प्रियो, ये तीनों दिन जो आपका सेलिब्रेशन है, एक एक वचन का लाभ उठा लेना, एक एक वचन को अपने जीवन में ले लेना। और ये तब होगा जब मैं और आप आज कहने के लिए तैयार है, लॉर्ड आई एम विलिंग टू सिट एट दाई फीट। मैं तेरे पैरों के पास बैठने के लिए तैयार हूं। अर्थात मार्था जो है वो किस चीज का चिन्ह है? वो सर्विस, सेवा का चिन्ह है। लाजर कौन सी चीज का चिन्ह है? लाजर कम्युनियन, विटनेस, संगति का वो चिन्ह है। मरियम कौन सी चीज का चिन्ह है? मरियम एक आराधना, एक दयालु, एक धन्यवादी हृदय का चिन्ह है। तो हम देखते हैं मरियम ने जो किया, प्रभु ने कहा इसने मेरे लिए भलाई की है, इसने मेरे साथ भलाई की है। तो मरियम ने प्रभु के लिए आशीषित ठहरी। मरियम अपने जीवन के लिए आशीषित ठहरी कि वो भाग उसने चुन लिया जो उससे छीना ना जाए। मरियम अपने घर के लिए आशीषित ठहरी। मरियम आज कलीसिया के लिए आशीषित है, और मरियम आज पूर्ण विश्व के लिए एक आशीष का कारण बनी है। इसलिए हम और आप हमारे बच्चों का नाम मेरी मरियम रखते हैं। कोई भी अपने बच्चों का नाम यहूदा जुडस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो आशीष का स्रोत घर में भी है, बाहर में भी है, परिवार में भी है, मित्रों में भी है, संसार में भी है और कलीसिया में है। इतने सारे आशीष के लेवल्स, इतने सारे धन्य होने की बातों को उसी को मिल सकता है जो आज कहे, लॉर्ड एट दाई फीट, मैं तेरे चरणों के पास बैठने के लिए तैयार हूं। क्यों? बाइबल साफ लिखती है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। मरियम उसके पैरों के पास बैठी, वह धर्मी ठहराएगी। क्यों? उसने प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन का लाभ उठाती गई, तो उसका स्मरण बना रहेगा। आप चाहते लोग आपको याद करें, आप चाहते कि आपका स्मरण बना रहे, आप चाहते कि आपकी ये खुशबू, आपका ये सुहास हर जगह बना रहे। हो सकता है सिट एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना शुरू करो। वो लिखता है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से भी उत्तम होता है। अच्छा नाम
जो है अनमोल इत्रों से भी अनमोल है, उत्तम है। आज सुबह हमको आपको जान लेना है। आज हम दिन भर में ये प्रार्थना करते थे, रात भर ये सोचते रहते कि प्रभु एक स्थान में चुन लेना चाहता हूँ, वो है तेरे पाँव के पास, जहाँ प्रभु हर बात को मैं जान सकूँ, हर बात की प्राप्ति कर सकूँ। यू सी, यीशु मसीह ने यहूदा को इनडायरेक्टली ताड़ना दी। उससे कहा गरीब तो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। यहूदा की गिनती उन एक चेलों में से थी जरूर, यहूदा की गिनती उन चेलों में से थी जरूर, लेकिन चेलों का स्वभाव नहीं था। आज मेरे और आपकी भी गिनती मसीहों में हो सकती है, लेकिन क्या मेरा स्वभाव मसीहों जैसा है? आज मुझे जानना आवश्यक है। आज मेरी गिनती मसीहों में से हो सकती है। हम क्रूस टांग ले, टी शर्ट पहन ले, आयतें घर में लटका दे, ठीक है, दैट्स फाइन। तो लेकिन मेरी गिनती उनमें हो सकती है, लेकिन उनका स्वभाव है क्या ना? अगर आज उसके पाँव के पास बैठते हैं, हम कौन दिखावा कर रहा है और कौन अपने आप को प्रभु को दिखा रहा है, ये हम पहचान सकते हैं। कौन दिखावा कर रहा है और कौन अपने आप को प्रभु के सामने दिखाना चाहते हैं, हम ये पहचान सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मरियम ने कौन सी 10 चीज़ों को प्राप्त किया एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु मसीह के चरणों के पास कौन सी 10 बातों को मरियम ने पाया? सबसे पहले उसने पाया एक सीखने की आत्मा, एक सीखने की आत्मा। बहुत जन सीख नहीं पाते। आपने पढ़ा व्यवस्था विवरण 33:3 से कि सभी लोग उसके पाँव के पास बैठते थे और एक एक वचन का लाभ लेते थे। उनके अंदर में एक सीखने की आत्मा थी। दूसरा कि वे उत्तम गवाह बन सकी, क्योंकि दूसरे यहूदियों को अपने साथ लेकर आई। और अब देखते कि उन्होंने वो गवाही देखी और उन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह पर लेकर आए, क्योंकि लाजर जिलाया गया। अगर आपके अंदर में गवाही देने का समय सूख गया है, प्रभु कहते हैं मैं ओस बरसाना चाहता हूँ, तेरे जड़ों को मैं जल के पास लेकर जाना चाहता हूँ, तुझे वापस में ताज़ा और हरा भरा करना चाहता हूँ, मेरे पाँव के पास आकर बैठ। मरियम जब पाँव के पास बैठी, सीखने की आत्मा प्राप्त की, एक उत्तम गवाह बन सकी। तीसरा, वो अपना पूरा मन उसके सन्मुख खोल सकी। प्रिय लोगों के सन्मुख जब हम मन खोलते हैं, शायद कोई मेरा और आपका विश्वासघात करे, ये शायद मेरा और आपका गैर फायदा उठाए, लेकिन हम देखते कि यीशु मसीह ने मरियम के मन को संभाल लिया, मरियम के मन की वेदना का आदर किया और लाजर को जिलाकर घर में आनंद वापस दिया। आज उसके चरणों के पास सीखने की आत्मा, उत्तम गवाह, खुला हृदय, और मैं मेरी पूरी पीड़ा उसके सन्मुख रख सकता हूँ। आई कैन टेल गॉड, मुझे यहाँ चोट लगी है, प्रभु मेरे घाव को तू चंगा कर दे। उसके पाँव के पास मैं उत्तम देने वाला बन जाता हूँ। आई बिकम अ गुड गिवर, मैं प्रभु के राज्य में उत्तम बातों को देने वाला बन जाता हूँ। और जब मैं और आप उत्तम देने वाले बन जाते हैं, तो मेरे अंदर में और आपके अंदर में एक पहचान आ जाती है। कौन सी पहचान आ जाती है? मरियम के अंदर में एक पहचान आ गई, हु इज जीसस एंड हु इज जूडस। मैं और आप समझ जाते कौन दिखावा कर रहा है और कौन अपने आप को प्रभु के सामने दिखाने के लिए उपस्थित हुआ है। हम एक प्रैक्टिकल मनुष्य बन जाते, उपयोगी बन जाते। जब बहुमूल्य इत्र चढ़ाते, हम अपना उपयोग किस हद तक हो सकते वो हम दिखाना शुरू कर देते, और प्रभु एक ज्ञान से भर जाता है। कौन से ज्ञान से भर जाता है? हु इज इन प्रिटेंस, हु इज इन ट्रूथ। कौन दिखावे से आ रहा है और कौन सच्चाई से आ रहा है। अगर मैं उसके पाँव के पास आज बैठने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए एक लास्टिंग मेमोरियल, एक अद्भुत यादें प्रभु बना कर रखता है, जो सदैव के लिए पाई जाएगी, और मेरा स्थान सदा, वो जगह मेरे लिए सदैव के लिए बना रहेगा। और उसके पाँव के पास मेरा और आपका
कोई भी सुधार अधूरा नहीं रहेगा, मेरे आपका पूरा सुधार पूरा हो जाएगा। और उस सुधार के साथ प्रभु एक उद्धार की भी आशीष लेकर आता है। तो आज मुझे निर्णय लेना है प्रभु, लोगों के पांव के पास न पड़ा रहूंगा, लाचारी के पांव के पास न पड़ा रहूंगा। वो गरीब था, वो सुंदर फाटक के पास पड़ा हुआ था, दोनों पांव से लंगड़ा था और वो चाहता था कि वो पतरस की ओर से आस लगाए कि मुझे कुछ मिल जाए। पतरस ने कहा, सोना और चांदी नहीं, मेरे पास एक नाम है, यीशु मसीह के नाम से उठ। और वो उछलता हुआ मंदिर में पाया गया, उछलता हुआ मंदिर में पाया गया। शायद मैं और आप भी आज लंगड़ाते हैं, मैं और आप भी कोई ना कोई फाटक के पास आज अटके पड़े हैं। अपने आप को वहां से उठाना है, यीशु मसीह के नाम से अपने आप को वहां से उठाना है और अपने आप को यीशु मसीह के पांव के पास डाल देना है। आइए हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हम पर दया कर। मैं हर एक स्थान को छोड़ना चाहता हूँ, लोगों का स्थान छोड़ना चाहता हूँ, भीड़ का स्थान छोड़ना चाहता हूँ, रोने का स्थान छोड़ना चाहता हूँ, कमीपन का स्थान छोड़ना चाहता हूँ, लाचारी का स्थान छोड़ना चाहता हूँ, मेरी बीमारी, मेरे बंधन, मेरे अपशब्द के स्थानों को छोड़ना चाहता हूँ और वो स्थान पाना चाहता हूँ जो मुझसे कभी छीना न जाएगा। और वो स्थान है यीशु मसीह तेरे चरणों के पास। मरकुस 5 में जिसके अंदर में से सेना भर की दुष्ट आत्माएं निकली, बाइबल बताती है वो सचेत बुद्धि से यीशु मसीह के पांव के पास बैठा गया। आज आपकी बुद्धि में कुछ हो गया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपकी बुद्धि सफलता की ओर नहीं लेकर जाती। कम टू द फीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरणों के पास आओ। और वो कहता है जगत के सारे जाति के लोगों से वो प्रेम करता है और हर एक जन जो उसके पांव के पास बैठकर एक एक वचन का लाभ उठाते हैं। तो प्रभु चाहता है आज कि तीनों दिन की सभाओं में आप एक एक वचन का लाभ उठाने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद तेरी कृपा के लिए, तेरे आशीष के लिए, तेरा अधिकार के लिए, तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे कलाम की समझ के लिए। किसी को 2 बार बुलाता है, किसी को नाम लेकर बुलाता है। प्रभु आज हम ये मरियम का स्थान चाहते हैं, हमें एक सीखने की आत्मा दे, हम एक उत्तम गवाह बने, हम एक उत्तम देने वाले बने, हम खुले मन से आए, हमारा दुख तेरी और पूर्ण रीति से दे दे, हमें पहचानने का दान मिले कौन यीशु है कौन यहूदा है। हम उपयोगी बने परमेश्वर, दिखावे करने से और दिखाई देने में से अंतर हम पाने वाले बने। प्रभु हमारी यादें तेरे सन्मुख सदैव बनी रहे और प्रभु हमें वो स्थान मिले जो हमसे कभी छीना न जाए। प्रभु कोई प्रकार का सुधार मेरे जीवन में अधूरा ना हो, हर प्रकार का सुधार पूरा हो जाए और मैं उद्धार को प्राप्त करने वाला बनूं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हम अपना स्थान बदल के रहेंगे, हम अपना स्थान तेरे पैरों के पास डाल देते। और मत्ती 29 में लिखा है, लंगड़े, टुंडे, अंधे, लंगड़े जो भी तेरे पांव के पास डालेंगे उन सभीयों को तूने चंगाई दी। उनको स्थान संसार और जगत में नहीं था, उनका स्थान तेरे पैरों के पास था। तो आज प्रभु जो अपना स्थान खो बैठे हैं और संसार में उनके लिए कोई स्थान नहीं, तेरे पांव के पास अवश्य स्थान है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमेन और आमेन। जय मसीह की। थैंक यू। परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord, people of सुंदर God. वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता I हूँ thank the Lord for this beautiful और मैं message. विश्वास कर रहा हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में काम कर रहे And हैं। I believe that this word of God will work in your इस life. सामर्थ्य वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता And हूँ। I thank the Lord for this powerful word. और कल भी हमारे बीच में और एक वक्ता हमारे बीच में बात करने And वाले हैं tomorrow too we have a guest speaker amongst us. और परमेश्वर उनकी सेवकाई के द्वारा आप लोगों को निश्चित आशीष में And the करेंगे। Lord will truly bless you through his ministry. इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, And so I want to encourage you. Zain.tv और Zain.tv ये जो YouTube है और Zain.tv हमारा Facebook है, इन दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से के साथ शेयर We कीजिए। are broadcasting this on YouTube and a Facebook channel, and both are named Zion.tv. So subscribe to our channels, follow our page, and share it with as many people as you ताकि can, अधिक से अधिक लोग आशीष में हो so पाए। that many people will be blessed through this मुझे आनंद ministry. है हमारे
हमारे तीसरे वक्ता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। And it's a great joy for me to present our third guest speaker, आपका नाम है बिशप ऑक्टेवियो नेविस। and his name is Bishop Octavio Nevis. जीसस फॉर ऑल इस मिनिस्ट्री से आप इसके अंतर्गत सेवा कर रहे हैं। And this mighty man of God is leading the ministry called Jesus for All Nations. देश विदेश में आपने जाके सेवा की है। And this man of God has ministered in our country आपकी and सेवा outside के our द्वारा country. कई लोग आशीषित हुए हैं और हो रहे हैं। And through his ministry, many people are blessed. इसलिए मैं चाहूंगा कल के लिए भी आप तैयार रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। And so be prepared for tomorrow's night and share it as much as you can. और मैं आप लोगों से और एक बात कहना And चाहूंगा, let me tell you, people of इस God, वचन के द्वारा आप लोग अपनी शुभेच्छा भेज सकते हैं। that you can send your greetings by your comments. यस, आप अपनी शुभेच्छा भेज सकते You हैं। can send your greetings. अगर इस सेवा के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप शुभेच्छा जरूर If भेजिए। you are blessed by our ministry, send your greetings to us. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ Heavenly प्रभु। great God, I thank you. I give you glory, आपने अपने praise, दास and के honor. द्वारा हमसे बातें की है You परमेश्वर। have spoken with us through your servant, आपका सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में आया है and your प्रभु। powerful word has entered our life. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, ये वचन हमारे जीवन को विशेष करके हमारे जीवन को बदलेंगे। And I believe that this powerful words will change our life, O Lord. और आज के वचन को हम जैसा है हमारे जीवन में हो और आमीन करके हम स्वीकारते And हैं। Lord, we receive tonight's word as it is with yes and amen. प्रभु तेरे दास जुतानी को आप आशीष में खींचिए। Lord, bless your servant, Pastor Jutani. प्रभु उनकी सेवा को आशीष में कीजिए। Bless his ministry, O उनके Lord. परिवार को आशीष में कीजिए। Bless his family. उनकी सेवा को आप आशीष में कीजिए। Bless his ministry, Lord. और इन दिनों में सामर्थ्य रीति से उनको इस्तेमाल And कीजिए। use him mightily for your glory. प्रभु सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको I देता give you हूँ। all the glory, praise, and honor. त्राता यीशु के नाम In the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष तेरे दास के साथ और तमाम सुनने वाले टीवी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे और खास करके मोबाइल स्क्रीन पे सुनने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।